السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ۔ شاہدین کرام اور ناظرین کرام اور دیگر ہماری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بچوں، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت سے نوازے اور ہر قسم کے آفات اور بلیات سے، مصیبتوں سے محفوظ اور مامون رکھے، آمین۔ کل کے درس میں نے چند بڑے بڑے کرونا وائرس کا نام دے کر کچھ بڑے بڑے گناہوں کو بتلانے کی کوشش کی تھی، اس امید اور گزارش کے ساتھ کہ ہم سب خاص طور پر کرونا وائرس کو دیکھ کر اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں اور اپنے آپ کو سارے بڑے گناہوں سے خصوصی طور پر بچانے کی کوشش کریں، خود بچیں اور دوسروں کو بچائیں، کیونکہ یہ دنیاوی کرونا وائرس، اس کے انجام، اس کے نتائج، اس کے مشکلات، اس کے وجہ سے جو سنکٹیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں، اسے ہم اپنی نگاہوں میں سے دیکھ رہے ہیں، اور مومن، پکا سچا مسلمان دوسروں کو دیکھ کر عبرت اور نصیحت حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پچھلی قوموں کی تاریخ اور ان کے قصے اور کہانیاں بیان فرمایا ہے، کیونکہ وہ لوگ بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے، بڑے گناہوں میں لت پر رہتے تھے، اور ان کے وقت مختلف انداز سے بھی کرونا آیا، بیماریاں آئیں، کوئی ڈبویا گیا، کوئی دھسایا گیا، کوئی کسی کے لیے عبرت کا سامان بنایا گیا۔ تو اسی سے جڑا ہوا آج یہ دوسرا سبق اس سلسلے میں لینا چاہتا ہوں کہ اس وقت اور ہمیشہ یہ ضرورت رہی اور ہے اور رہے گی کہ ہم طالب علموں کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وقت کی نزاکت کو دیکھ کر، دین کے تئیں لوگوں کی لاپرواہیوں کو دیکھ کر، اور موجودہ جو صورتحال ہے، چاہے وہ کرونا وائرس ہو اور چاہے وہ دیگر ظالموں کا ظلم ہو، ان ساروں کو دیکھ کر ہم قوم کو آگاہ کریں اور قوم کو جگائیں، کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ چاہے یہ کرونا وائرس ہو اور چاہے اس کرونا وائرس کے سنکٹ کے سمے اور وقت میں ظالموں کا خصوصی طور پر مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو، یا عام حالات میں مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی ہو، یا پیداوار اور پھلوں میں کمی ہو، یا زیادہ موتیں ہوں، یا مختلف انداز کی بیماریاں ہوں، یقیناً انہیں دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالی ہے، اور اللہ تعالی سے ان کے دور کرنے کی فریاد کرنا ہماری ایمانی غیرت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح بنائیں کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم فرمائے، ہمارے اوپر کرپیا کرے،
اور ہمارے اوپر مہربانی کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو آزمائشیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو ابتلاءات ہیں، جو عذاب ہے وہ ہٹے، اور ایک نیک بندے کے لیے اللہ تعالیٰ سے، ایک مومن مسلمان بندے کے لیے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور دھمکی اور وعیدوں پر یقین کرتے ہوئے پہلی فرصت میں اپنے بڑے بڑے گناہوں سے پہلی فرصت میں توبہ کر لے، کیونکہ جب تک بندہ اپنے بڑے بڑے گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا اللہ کی رحمت جوش میں نہیں آئے گی، پھر ہم لاکھ واہ واہ کریں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور ان بڑے بڑے گناہوں کو میں نے نام دیا ہے سمجھانے کے لیے بڑے بڑے کورونا وائرس۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ اور ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ریکویسٹ اور گزارش یہ ہے کہ سورہ نجم کی آیت نمبر 36 ہم دیکھیں، پڑھیں اور غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، اور فحش کاریوں سے، فحش گوئیوں سے بچتے ہیں، الا اللمم، سوائے چھوٹی موٹی لغزشوں کے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ کشادہ مغفرت اور بخشش والا ہے۔ گویا اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی، جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے واجب کردہ عبادات کی پابندی کرتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادتوں کو قبول بھی فرماتا ہے، اور انسان ہونے کے ناطے جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے سورہ شورى کی آیت نمبر 37، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ جو بڑے بڑے پاپوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور فحش کاموں سے بچتے ہیں، دوسرے پہ غصہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت، بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کر کے بچنے لگتا ہے، تو انسان ہونے کے ناطے جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ دوسری عبادتوں کے بدولت اسے درگزر فرما دیتا ہے اور معاف فرما دیتا ہے۔ سامعین کرام اور ناظرین کرام، کورونا وائرس یقیناً ایک مہلک اور تباہ کن بیماری ہے، جس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ آج کس طرح ہم اور آپ پریشان ہیں، اور یہ بیماری گھٹنے کے بجائے، کم ہونے کے بجائے، ختم ہونے کے بجائے پوری دنیا کے بیشتر ممالک کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ، بڑے بھیانک انداز میں، بڑے خطرناک انداز میں پھیل رہی ہے، اور اس پر کنٹرول کرنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا اس بات پر ایمان اور ہمارا اس بات پر یقین اور وشواس ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی مکمل طریقے سے جانتا ہے کہ رب کائنات نے ہم لوگوں کے زمانے میں اس کورونا وائرس کو کس مصلحت کے ساتھ بھیجا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن ہم یہ بات بھی ساتھ ہی ساتھ ہوشیار ہونے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کی وجہ سے ہم بھی یہ بات جانتے ہیں کہ یقیناً یہ پریشانی بنا اللہ تعالیٰ کی جانب لوٹے، بنا اللہ تعالیٰ سے رجوع کیے ہوئے، بنا اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کیے ہوئے، بنا اللہ تعالیٰ سے قریب ہوئے یہ بیماری دور نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا
اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا، بنا بڑے بڑے گناہوں سے توبہ اور بنا بڑے بڑے گناہوں سے بچنے سے کے علاوہ اور کسی چیز سے نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، میں نے ان بڑے بڑے گناہوں کو کورونا وائرس کا نام دیا ہے، اور یقیناً دنیاوی کورونا وائرس جیسی مہاماری اور وبائی بیماری سے وہ بڑے بڑے گناہ جسے آج ہم بڑی آسانی کے ساتھ روزمرہ یا ہم میں سے اکثر بیشتر لوگ جن کا ارتکاب کرتے ہیں، اگر دیکھا جائے، اگر تجزیہ کیا جائے اور اگر ریسرچ کیا جائے تو یہ دنیاوی کورونا وائرس کی بیماری بڑے گناہوں سے کہیں زیادہ کم نقصان دہ ہے۔ سامعین کرام، اسلامی بھائیوں، آئیے اختصار کے ساتھ چند بڑے بڑے کورونا وائرس جن کو بڑے گناہ کہا جاتا ہے ہم بتلانا چاہتے ہیں۔ انہی بڑے بڑے کورونا وائرس میں سے ایک بڑا گناہ، بڑا کورونا وائرس ہے خودکشی کر لینا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تقدیر کو اپنے علم کے حساب سے لکھ دیا ہے، اور تقدیر میں جتنا لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا، اور ایک مومن اور مسلمان مرد اور عورت کا اس بات پر ایمان اور یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا لکھا ہے اس سے زیادہ ہمیں نہیں مل سکتا، اور نہ اس سے زیادہ ہمیں کوئی چیز لاحق ہو سکتی۔ چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کئی کورونا وائرس کے خطرات سے کوئی مریض اگر کورونا وائرس سے مبتلا ہو گیا ہے یا دنیاوی اور کوئی دیگر پریشانیاں ہیں تو بہت سارے بیوقوف اور احمق لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، آتم ہتیا کر لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو تم میں سے جو شخص جس چیز سے اپنی آتم ہتیا کرے گا اور خودکشی کرے گا اسی سے عذاب دیا جائے گا۔ ہم دنیاوی پریشانیوں اور مصائب میں گھر کر ہم یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حدود سے آگے بڑھ جائے تو اس مہاماری بیماری سے تنگ آ کر خودکشی کر لینا یا بچوں کو مار ڈالنا یا کسی کو اس طرح بند کر دینا کہ بیچارہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے، یہ سب سے بڑا کورونا وائرس ہے۔ اسی طریقے سے کورونا وائرس میں سے ایک بہت بڑا کورونا وائرس ہے جس کو اگر اندازہ لگانا ہو تو لگائے، اور بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور یہ چیز متعلق ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں علماء کرام سے، مفتیان عظام سے، طلباء عظام سے، جن کو قوم نے پالا ہے، پوسا ہے، انہیں انسانیت سکھایا ہے، اور انہیں اپنے حلال کمائیوں میں سے خرچ کر کے اس لیے عالم بنایا ہے، اس لیے قاری بنایا ہے، اس لیے مقرر بنایا ہے، اس لیے مدرس بنایا ہے وغیرہ وغیرہ کہ یہ ہمارے لیے صدقے جاریہ ہوں گے، یہ ہمارے دین اسلام کے حامی اور محافظ ہوں گے، یہ دین اسلام کے پرچم کو لوگوں تک پہنچانے والے ہوں گے۔ یقیناً وہ اپنی نیتوں میں اور ارادوں میں مخلص ہیں، اور ان کے اخلاص کی ایک دلیل اور ایک پروف ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کچھ لکھنے کا موقع دے دیا، کچھ بولنے کا موقع دے دیا، کچھ آیتیں یاد کرا دی، کچھ مسائل یاد کرا کیے۔ سب علماء کے اندر بہت ساری کمیاں پائی جاتی ہیں، اللہ ہم سب علماء کو اس سے بچائے، آمین۔ اور وہ یہ ہے، اور یہ بہت بڑا وقت کا کورونا وائرس ہے، دنیا کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، دنیا کے اندر شان و بان، ٹھاٹ و بات اور ناموری کے لیے علم کو حاصل کرنا، دینی علم کو حاصل کرنا اور دوسرے کے بچوں کو دینی علم سکھانا، یہ سب سے بڑا کورونا وائرس ہے۔ اور موضوع بدل جائے گا، ورنہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں جس میں کسی قدر مبالغہ نہیں، آج ہماری میجارٹی کی اکثریت یقیناً طلبہ پڑھتے ہیں کمائی کے لیے، روزی روٹی کے لیے، مدینہ یونیورسٹی کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر، اور ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر، ان کے میں سے اکثر کا مطمع نگاہ اور ان کا
टारगेट दुनिया हासिल करना है, या पढ़ाते हैं तो दुनिया हासिल नहीं। मेरे भाइयों, दुनिया हासिल करने के लिए इल्म दीन हासिल करना और इल्म दीन सिखाना, ये बहुत बड़ा कोरोना वायरस है। और याद रखिए, इसका बुरा अंजाम हमें और आपको भुगतना पड़ेगा अगर हमने इखलास नीयत के साथ, खिदमत खल्क के जज्बे से, खिदमत दीन इलाही के जज्बे से, कुरान और हदीस की सच्ची खिदमत के जज्बे से हमने इल्म हासिल किया तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कभी हम जलील नहीं किए जाएंगे, कभी हमें रुसवाई नहीं मिलेगी और कभी फक्र फाका नहीं मिलेगा। अवाम हमारी कदर करे या न करे, मदरसे का नाज़िम हमारी इज्जत, हमारे मकाम को पहचाने या न पहचाने, अल्लाह ताला जो ही जितना ही हमारी नियतों में इखलास होगा, खिदमत खल्क, खिदमत दीन लिल्लाह फिल्लाह करने का जज्बा होगा, उतना ही अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाएगा। क्योंकि मुखलिस उलमा अंबिया के वारिस है, मुखलिस उलमा अंबिया के वारिस है। क्योंकि मुखलिस दीन के इल्म रखने वालों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, हल यस्तवी लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। लिहाजा मेरे भाइयों, दुनिया तलबी के खातिर दीन का इल्म हासिल करना या दूसरों के बच्चों को दीन का इल्म सिखाना, ये सबसे बड़ा कोरोना वायरस है। और अगर हमने खालिस दुनिया के लिए हमने ये काम किया तो इसका अंजाम क़ियामत के दिन बड़े कोरोना वायरस की शक्ल में हमें भुगतना पड़ेगा। अल्लाह हम सबको उन लोगों में से न बनाए जो इल्म दीन को दुनिया कमाने का बहाना बनाते हैं या उसको जरिया बनाते हैं। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी तो इस्लाह फरमा। कोरोना वायरस में से एक बहुत बड़ा कोरोना वायरस जिसको मैंने पिछले 10 में थोड़ा सा जिक्र किया, खियानत। खियानत, हर तरह की खियानत, हर तरह की बददियानती, ये बहुत बड़ा कोरोना वायरस है जिसकी वजह से दुनिया के अंदर कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक, कोरोना वायरस, टीबी, मरने कितनी बीमारियां आ जाती हैं। और क़ियामत के दिन तो और ही बड़ा बुरा अंजाम होगा। खियानत करने वालों की एक पहचान अल्लाह ताला बना देगा जिससे लोग जान जाएंगे कि यह खियानत, हुकूक में खियानत करने वाला है और अमानतों में खियानत करने वाला है। कोरोना वायरस और बड़े गुनाह में से एक बड़ा गुनाह है, अल्लाह महफूज रखे मुझे, मेरी ज़ुर्रियत को और सारे मुसलमानों को, एहसान करके एहसान जितलाना। या एक बात और बतला देता हूं, बसा औकात बाप है, माँ है, भाई है, समाज के लोग हैं, सिर्फ जगाने के लिए, एहसास पैदा कराने के लिए, नेमतों का तारुफ कराने के लिए, नेमतों की याद दिहाने के लिए बसा औकात अपने किए हुए कामों को जिक्र कर देते हैं ताकि समाज के अंदर इस्लाह पैदा हो, एहसान मंदी का जज्बा पैदा हो, हक शनासी का जज्बा पैदा हो। ये अगर नेक नीयत से किसी को उभारने के लिए, किसी को समझाने के लिए, किसी को अल्लाह का एहसान दिलाने के लिए कह दिया कि भाई तुम ऐसे थे और अल्लाह ताला ने ऐसा कर दिया, किसी के जरिए एहसान जितलाना नहीं है। लेकिन खाली जिस पर हमने एहसान किया है, किसी भी तरह का एहसान, किसी भी तरह का करम, किसी तरह की भी शफकत और मोहब्बत, और फिर उसको हकीर समझते हुए, उसे जलील समझते हुए, समाज के अंदर उसे बेइज्जत करने के खातिर, उसके दिलों को तकलीफ देने के खातिर एहसान जितलाना, ये बहुत बड़ा कोरोना वायरस है। और एहसान जितलाने से बंदे की सारी नेकी खत्म और रायगा बर्बाद हो जाती है। और क्या करेंगे, आज समाज के अंदर ये खराबी पाई जाती है। अल्लाह हमारी इस्लाह फरमाए, सारे मुसलमानों की इस्लाह फरमाए। आज देख लीजिए, एक घर में 2 भाई 3 भाई होते हैं, एक भाई छोटा होता है, उसकी किस्मत की वो बाद में पैदा हुआ, एक भाई बड़ा होता है, उसकी किस्मत वो पहले पैदा हुआ। और समाज की खराबी की वजह से बहुत सारे वालिदैन या तो छोटे बेटे की तरफ ज्यादा माइल हो जाते हैं, या तो फिर बड़े बेटे की तरफ ज्यादा माइल हो जाते हैं, या तो ज्यादा कमा कर देने वाली औलाद की तरफ ज्यादा माइल हो जाते हैं। वो छोटा भाई जो
اللہ تعالیٰ نے جس کو بعد میں پیدا کیا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ بڑا بھائی کما کر کے اگر کچھ خرچ کرتا ہے، پڑھاتا لکھاتا ہے، باپ کی ذمہ داری کی ادائیگی میں مدد کرتے ہوئے، والدین کی ذمہ داری میں مدد کرتے ہوئے اگر چھوٹے بھائی کی شادی میں کچھ مدد کر دیا، چھوٹے بھائی کی تعلیم میں کچھ مدد کر دیا، تو اللہ کی قسم ایسے ایسے جملے سنائے جاتے ہیں، احسان جتلائے جاتے ہیں کہ کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے، اور اپنے جوان بچوں کے سامنے ایسے چھوٹے بھائی کی بے عزتی اس کے سامنے آئی تھی۔ حالانکہ کسی پر احسان کرنے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لائق بنایا کہ تم کسی پر احسان کر سکو، اور اس احسان کے قبول کرنے والے کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اس نے تمہارے احسان کو قبول کر لیا۔ اور آج تو دنیا کے اندر کیا بتایا جائے، اگر کبھی 2 سال پڑھا دیا ہے یا شادی کر دی ہے تو پوری زندگی کی کمائی آپ نکل لینا بالکل بہانہ بناتے ہیں، میں ہی بڑا تھا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اور پھر چھوٹے بھائی کو ایک تو زرخریدہ غلام بنا کر کے رکھا جاتا ہے، اس کے بچوں کو زرخریدہ غلام بنا کر کے رکھا جاتا ہے، اور بات بات پر احسان جتلایا جاتا ہے، اور اس کی پوری کمائی پر شرعی حق ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں، تو احسان جتلانا یہ بہت بڑا کرونا وائرس ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اپنی نیکیوں کی حفاظت کرو، اپنے صدقات و خیرات اور اپنے ہدیہ تحفہ اور اپنے تعاون کی حفاظت کرو، احسان نہ جتلاؤ۔ ایک بہت بڑا کرونا وائرس، تقدیر کو جھٹلانا۔ بہت سارے جاہل لوگ کہتے ہیں تقدیر کیا ہے، تقدیر نہیں میرے بھائیوں، ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا، جو تقدیر بنائی ہے، اس کی اچھائی اور برائی پر ایمان رکھنا۔ تقدیر کا انکار کرنا یہ بہت بڑا کفر اور بہت بڑا گناہ ہے، اور کسی کام کے لیے تقدیر کو بہانہ بنانا یہ بھی بڑا جرم ہے۔ اسی طریقے سے کورونا وائرس میں سے جس کا نقصان دنیا کے اندر بھی ہوگا اور آخرت کے اندر ہوگا، لوگوں کی باتیں چپکے سننا کان لگا کر، جسے وہ چھپانا چاہتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ہمارے آپ کے اندر کوئی بات ہو گئی، سماج کے اندر کوئی بات ہو گئی، تو لوگ دوسروں کے گھروں کے پیچھے، دوسروں کی دیواروں کے پیچھے، دوسروں کے پیچھے کھڑے ہو کر کے غافلانہ انداز میں دوسروں کی چپکی باتیں سنتے ہیں، جو وہ نہیں چاہتا، جو بیچارہ دو دوست چپکے بات کرے۔ یہ بہت بڑا کرونا وائرس ہے۔ اسی طریقے سے اللہ ہماری زبان کی حفاظت فرمائے، سارے لوگوں کی زبان۔ آج تو بڑا کرونا وائرس ہماری زبانوں پہ 24 گھنٹہ رہتا ہے۔ زبان میں کرونا وائرس چغل خوری، غیبت، جھوٹ اور لعن و طعن کرنا، گالی گلوچ بکنا، یہ زبان میں کرونا وائرس ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی کر کے اس وقت کی موجودہ بیماری اٹھا لے، لیکن دیکھیں آج ہماری زبانوں کے اندر، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ عوام ہوں، چاہے وہ تہجد گزار ہوں، چاہے وہ متقی و پرہیزگار ہوں، زبان کا کرونا وائرس کیا؟ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، زبان سے گالی گلوچ بکنا، زبان سے تہمتیں لگانا، زبان سے دوسرے کی ہوٹنگ کرنا، زبان سے دوسرے کے تحقیراً اور تدلیلاً حقیر و ذلیل سمجھتے ہوئے ٹھٹھا اور مذاق اڑانا وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ یہ جتنی چیزیں زبان سے متعلق ذکر کی گئی ہیں، یہ بہت بڑا کرونا وائرس ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض گزاشت ہوتے ہیں کہ اے آقا ہمیں نصیحت کیجئے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امسک علیک لسانک، تم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کچھ بولنا چاہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، تو وہ بولے تو اچھی ہی بات بولے، جائز ہی بات بولے، پیار و محبت پیدا کرنے والی بات بولے، یا تو خاموش رہے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر لوگ، اکثر نمازی، اکثر تہجد گزار
अक्सर तौहीद वाले, अक्सर लोग अपनी जबान की आफतों और मुसीबतों की वजह से जहन्नम के अंदर औंधे मुंह डाल दिए जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको उन लोगों में से न बनाए जो जबानों की हिफाजत नहीं करते। तो ये चुगलखोरी, लानतान करना हस्ब नसब पर, गीबत करना और तहमतें लगाना, पीठ पीछे किसी की बुराई करना, लगाई या बुझाई करना और इसी तरीके से आपस में जबान के जरिए लड़ाना, यह सबसे बड़ा कोरोना वायरस है। और आप चले जाइए, इससे महफूज वही चंद लोग होंगे जिन पर अल्लाह ताला की मेहरबानी है, वरना इस जुर्म के अंदर अक्सर और बेशतर मुलव्विस हैं। झूठे फतवे देना और वगैरह, अक्सर और बेशतर मदरसों के अंदर चले जाइए, मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ने के बाद देखिए अक्सर ही मामला होता है। तो ये बहुत बड़ा कोरोना वायरस है जिसका बुरा नतीजा दुनिया के अंदर भी हम देख रहे हैं। आज मुस्लिम समाज के अंदर वो प्यार नहीं, वो मोहब्बत नहीं, वो इंसानियत नहीं, वो उखुवत नहीं, वो भाईचारगी नहीं, उसकी अक्सर वजूहात में से जबान का गलत इस्तेमाल आज घरों के अफराद में इंतशार है। आज सास बहू की बनती नहीं, बहू सास की बनता नहीं, बाप बेटे का, बेटा बाप का, भाई बहन का, बहन भाई का, भांजे मामू का, मामू भांजे का, वगैरह वगैरह। ये सब जबान की खराबियों की वजह से अक्सर समाजी खराबियां पाई जाती है, जो ये बहुत बड़ा कोरोना वायरस है। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा कोरोना वायरस जो बड़ा गुनाह है, वादे को पूरा ना करना, अहद शिकनी करना, बदअहदी करना। मुसलमानों वादा उसी वक्त करें जब आप पूरी करने की ताकत रखते हैं, और किसी छोटे मामले में या बड़े मामले में वादा जब कर लें तो उसे पूरी करें, क्योंकि अल्लाह ताला वादा पूरी करना ये मोमिनों की पहचान और मोमिनों की सिफत पाई। आज वादा खिलाफियां हो रही कि नहीं हो रही है? नाजिमों से, सेठों से, गुलामों से, आजादों से, मालदारों से, आलिमों से, औरतों से, बीवियों से, वगैरह वगैरह। वादा खिलाफी, अहद शिकनी, एग्रीमेंट को तोड़ देना, बदअहदी करना और वादे को तोड़ देना, ये बहुत बड़ा जुर्म है जिसकी मजम्मत कुरान और हदीस के अंदर आई है। चुनाचे बहुत बड़ा कोरोना वायरस है एक समाज के अंदर, और बड़ा भयानक, बड़ा खतरनाक, अमलों को जाया बर्बाद कर देने वाला, इंसान के चेहरे की चमक को दूर कर देने वाला, इंसान के दिल को मुर्दा और पसमुर्दा और अफसुर्दा कर देने वाला बड़ा कोरोना वायरस आज हमारे समाज के अंदर पाया जाता है। और वो है गैब की खबर देने वाले के पास जाना, काहिनों के पास, नुजूमियों के पास, पंडवा के पास, मुस्तकबिल की बातें बतलाने वाले के पास, भविष्यवाणी करने के पास जाना। ये बहुत बड़ा कोरोना वायरस है। आज लोग हथेलियां देखकर अपनी तकदीर मालूम करते हैं। चीज गायब हो गई घर में, नाम निकालने वालों के पास चले जाते हैं, और नुजूमियों के पास, जो जादूगर होते हैं, नुजूमियों के पास, पंडवा के पास, गैब की खबर देने वालों के पास जाते हैं। ये बहुत बड़ा वक्त का कोरोना वायरस है, और ये आज हमारे मुस्लिम समाज की अक्सरियत के अंदर ये बात पाई जाती है। हालांकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी गैब की खबर देने वाले के पास गया और गया खाली, तो उसकी 40 वक्त की नमाज नहीं कबूल होगी। और अगर उसने गैब की दी हुई खबर की तस्दीक और पुष्टि की तो उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई शरीयत का इनकार किया। मेरे भाइयों, आज हम लोग कहां कहां भटक रहे हैं। ये लुटेरे डाकू जो ईमान को भी लूट रहे हैं और औरतों के इज्जतों आबरू को भी लूट रहे हैं और दौलत को भी लूट रहे हैं। गैब की नाम निकालने वाले, मुस्तकबिल की बातें बतलाने वाले, माजी की बातें बताने वाले, जादूगरी या शैतानों की मदद से हथेलियां देखकर इतनी लकीरें हैं, ये होगा, ये होगा, ये होगा, अरे ये तो आगे ये होने वाला है, तुम तो ये करोगे या नहीं करोगे, तुम्हारा ये साथ ये धोखा कर रहा, फला गैब,
ले आओ बनियाइन, ले आओ कपड़ा, ले आओ उसका कोई सामान, 2 दिन के बाद तुम्हारे बाप का नाम क्या है, वगैरह वगैरह, तुम्हारे बाप का नाम क्या है। ऐसे लोगों के पास जाना अपने ईमान को बेचना है, अपने दीन को बेचना है, अपने पैसे को खर्च करना है, अपने दिल की गैरत को मिटाना है और अपने बीवी बाल बच्चों को ऐसे लोगों के पास भेजना, उनकी इज्जत लुटवाना है। ये बहुत बड़ा कोरोना है, क्योंकि ये कुफ्र है, क्योंकि ये शिर्क है। आप ये बात जानते हैं, आपने कुरान मजीद के अंदर पढ़ी होगी अलिफ लाम मीम सूरह अलिफ लाम पहले ही में कि मोमिन गैब पर ईमान रखता है। और आप ये जानते हैं गैब का जानने वाला सिर्फ वो है जिसने नबियों को पैदा किया, रसूलों को पैदा किया, वलियों को पैदा किया, हमें और आपको पैदा किया। और उसका नाम सबसे बेहतरीन नाम अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, लौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्थरतु मिनल खैर, अगर मुझे गैब का इल्म होता, गैबदानी हमें होती तो मैं और ज्यादा नेकिया करता हूं। मोहम्मद सन्यसो, और हमें कभी कोई तकलीफ नहीं। और ये नजूमियों के पास जाना, ये नक्षत्र देख के बातें बतलाने वाले, ये पंडवा के पास जाना, ये बहुत बड़ा कोरोना वायरस। मुसलमानों अपने अकीदे की इस्लाह करो, मुसलमानों अपने अकीदे की इस्लाह करो। जब तक आप अपने अकीदे की इस्लाह नहीं करेंगे, अल्लाह ताला ये कोरोना वायरस खत्म करने वाला नहीं। शिर्क के जो मुख्तलिफ अंदाज के बाजार गर्म हैं मुल्कों के अंदर, शहरों के अंदर, घर घर में, इसको खत्म करना पड़ेगा। और इसी तरीके से एक बहुत बड़ा कोरोना वायरस, बहुत ही बड़ा ही खतरनाक, बड़ा ही डेंजर, बड़ा ही हानिकार, दुनिया के अंदर तबाह कर देने वाला, हौज़े कौसर से भगा देने वाला एक और बहुत बड़ा कोरोना, वो है दीन के अंदर बिदात ईजाद करना, दीन के अंदर खुराफात ईजाद करना। अल्लाह ताला का ये एहसान है, अल्लाह का ये करम है, अल्लाह की ये बड़ी मेहरबानी है हमारे उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर। रब्बे कायनात ने उम्मत मोहम्मदिया को ये एजाज दिया है, ये शरफ दिया है, ये मकाम दिया है, ये रुतबा दिया है कि अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को हमारे आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल कर दिया है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। और अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को मुकम्मल करके हमारे आखिरी नबी शाफ़े महशर साहिब हौज़ कौसर पर मुकम्मल करके अपनी नेमत तमाम कर, दीन मुकम्मल हो गया अल्लाह के रसूल के ज़माने। अब दीन के अंदर किसी तरह की नई चीज ईजाद करना, सवाब समझकर, इबादत समझकर, जिसकी असल कुरान और हदीस में ना हो, मनहज सलफ सालिहीन में ना हो, वो बिदात और खुराफात। ये बहुत बड़ा कोरोना वायरस, ये शबे बारात है, ये शबे मेराज है, और ये तीजा है, ये चलिस्वा है, ये कुरान ख्वानी है, ये फातिहा है, ये मीलाद है, ये फलाह है, ये फलाह है। एक नहीं, उठाओ किताब बिदात और उसके शरई पोस्टमार्टम, उठाओ किताब खाना साज शरीयत जो मौलाना अब्दुल रऊफ साहब नदवी हफिज़हुल्लाह ने लिखा, पढ़ो और जानो, आंखें खोलो। जब तक हमारे समाज के अंदर शिर्क पाया जाएगा, शिर्क के रास्ते पाए जाएंगे, बिदातें पाई जाएंगी, बिदती अमाल पाए जाएंगे, जब तक शिर्क की तरफ मुसलमान कह करके दावत देने वाले पाए जाएंगे, बिदात की तरफ दावत देने वाले पाए जाएंगे, यकीनन ये कोरोना वायरस लाख सजदे कर लो, लाख सदके कर लो, लाख रिलीफ बांट लो, ये कोरोना वायरस खत्म होने वाला नहीं। और अगर खत्म हो गया तो आखिरत के अंदर कोरोना वायरस होगा। कोरोना वायरस जो बहुत बड़ा कोरोना वायरस, जिससे खानदान तबाह हो जाता है, घर तबाह हो जाता है, बच्चे तबाह हो जाते हैं, बच्चियां तबाह हो जाती है, खानदान की इज्जत लुट जाती है, शर्म से बिल्कुल सर झुक जाता है। और वो क्या है, बड़े गौर से सुनना, बीवियों का शोहरों की जायज काम में इताअत और फरमाबरदारी ना करना, औरतों का अपने अपने शोहरों की जायज काम में, हलाल काम में, जिसको शरीयत ने जायज किया है, जिसको शरीयत ने हलाल किया है, जिसकी शरीयत ने पाबंदी की, उसमें इताअत और फरमाबरदारी ना करना, ये बहुत बड़ा कोरोना वायरस है। क्योंकि जब एक औरत अपने शौहर की
जायज़ और हलाल काम में बात न मानेगी, इताअत न करेगी, फर्माबरदारी न करेगी, तो मियाँ बीवी में इख्तलाफ पैदा होगा, फिर जुदाई होगी और तलाक होगी। और शैतान उस अपने चेले को सबसे बड़ा कामयाब मानता है जो मियाँ बीवी के अंदर जुदाई, घर में झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, ससुराल से शोहर के ताल्लुकात ख़त्म होंगे, सालों से शोहर के ताल्लुकात ख़त्म होंगे, समाज के अंदर उसकी रुसवाई होगी। लिहाजा मेरी माँ और बहनों, आप ये जानो कि आप लोगों के ऊपर शोहर का क्या हक जायज़ है, क्या क्या हुकूक जायज़ है, और वहीं पर शौहरों को भी जानने की ज़रूरत है कि बीवियों के हमारे ऊपर क्या क्या हुकूक हैं। तो खाविंद का, शौहर का और बीवियों की तरफ से नाफरमानी, ये बहुत बड़ा कोरोना वायरस है, बहुत बड़ा कोरोना वायरस। वक्त नहीं, वरना मैं तफसील के साथ बताना। इसी तरीके से मुजस्समे बनाना, स्टैचू बनाना, बिना शरई और समाजी अहम ज़रूरत के तस्वीर कशी, फ़ोटो खींचना, ये बहुत बड़ा कोरोना वायरस, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम समझे इन चीज़ों से रोका है, क्योंकि उम्मत मुहम्मदिया के अंदर सिर्फ जैसा बड़ा गुनाह आया है सिर्फ तस्वीर, मुजस्समे और स्टैचू की वजह से। और इसी तरीके से बहुत बड़ा कोरोना वायरस और बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर जब चाहता आसानियां पैदा फरमाता है। अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाने के लिए जब चाहता मुसीबतें और परेशानियां लाता है। ये सब अल्लाह ताला के हवाले है। अल्लाह के मोमिन बंदे का मामला अजीब होता है। अगर कोई परेशानी होती है तो वो सब्र करता है, और अगर कोई नेमत मिलती है तो अल्लाह का एहसानमंद होकर अल्लाह का शुक्रगुजार होता है। मुसीबतों के वक्त नौहा करना, मातम करना, गाल नोचना, बाल नोचना, सीना कोई भी करना वगैरह वगैरह, ये इस्लामी रविश नहीं है, ये इस्लामी तरीका नहीं है। और अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया कि जो हम में से मुसीबत के वक्त गाल नोचे, बाल नोचे, सीना कूबी करे, वाहवाला करे, नौहा और मातम करे, वो हमारे तरीके पर नहीं है। कपड़ा फाड़े, वो हमारे तरीके पर नहीं है। और अगर आपने न देखा होगा तो देखिए मुहर्रमी मेलों के अंदर और क्या होता है। मुहर्रम के अंदर मरसिया पढ़ा जाता है और नौहा किया जाता है, मातम, ये सब कुफरिया और गैर शरई काम है मेरे भाइयों। कोरोना वायरस में से एक बहुत बड़ा कोरोना वायरस, और जब तक यह अमली कोरोना वायरस खत्म नहीं होगा, न दुनिया के अंदर अमन शांति फैलेगी और ना ही आखिरत के अंदर अमन हमें मिलेगी। और वो है जुल्म और ज्यादती, वो है जुल्म और ज्यादती। अल्लाह ताला हम सबको ना जालिम बनाए ना मजलूम बनाए, आमीन। जुल्म, हमें क्या पता कि जुल्म कितनी घंघोर घटा है, हमें क्या मालूम कि जुल्म कितना जहरीला अजदहा है, हमें क्या पता कि जुल्म कितना बड़ा महाकोरोना है और कितना बड़ा जुर्म और गलती है। क्यों? एक ही दलील काफी है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता। और अल्लाह ताला जानता है हम तो अपने चर्ब ज़बानी से, सीना जोरी से, वास्तों से चाहे अपने आप को गैर जालिम बना ले, लेकिन अल्लाह ताला जानता है कि जुल्म क्या है, जुल्म का अंजाम क्या है। अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया, अज़्ज़ुल्मु ज़ुल्मातुन यौमल क़ियामा, जुल्म का रिजल्ट और नतीजा रोज़े क़ियामत अंधेरा होगा। और वक्त नहीं, वरना मैं बतलाता। आप जितनों का नाम जानते हैं मैं जिक्र करना चाहता हूँ। आप काबिल का नाम जानते हैं, हज़रत आदम के लड़के का। आप फिरऔन का नाम जानते हैं, आप शद्दाद का नाम जानते हैं, आप हामान का नाम जानते हैं, आप कौम समूद के बारे में पढ़ चुके हैं, आप कौम आद के बारे में पढ़ चुके हैं, आप कौम तुब्बा जानते हैं, आप अबू जहल को जानते हैं, आप अबू लहब को जानते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब जालिम थे, अल्लाह के दीन पर भी जुल्म किया, अल्लाह की मखलूक पर भी जुल्म किया, और उसका अंजाम आगे स्टॉप। जुल्म और ज्यादती, ये बहुत बड़ा कोरोना वायरस। आज देख लीजिए, चंद हुकूमतों के अलावा, चंद इस्लामी हुकूमतों के अलावा अक्सर हुकूमतें सिर्फ अपनी रियाया पर जुल्म और ज्यादती ही करती हैं। और रियाया में से अक्सर हुकूमतें
मुसलमानों पर खास तौर पर जुल्म करती हैं। हालांकि ऐसे जालिम हुकूमतों को फिरऔन की तारीख पढ़नी चाहिए, हामान की तारीख पढ़नी चाहिए, शद्दाद की तारीख और हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं। और ऐसे ऐसे जालिम हुकूमतों को तारीख पढ़नी चाहिए, हिस्ट्री पढ़नी चाहिए कि जब तक तुम्हारे मुल्क के अंदर तौहीद पसंद लोग हैं, इस्लाम वाले हैं, सच्चे मोमिन हैं, जब तक तुम हो और जब इस्लाम वाले, ईमान वाले खत्म कर दिए जाएंगे तो उस वक्त तुम भी खत्म कर दिए जाओगे। जुल्म और ज़्यादती हुकूमती सतह पर। आज तो वही ज़माने जाहिलियत की रविश चली, हर अमीर गरीब पर जुल्म, हर बड़ा छोटे पर जुल्म, हर हाकिम महकूम पर जुल्म, हर गालिब मगलूब पर जुल्म, वगैरह वगैरह वगैरह, जुल्म और ज़्यादती। ये बहुत बड़ा कोरोना वायरस। इस मौके पर मैं खुसूसियत के साथ अपने दिल से और आप सब से ये अपील करना चाहता हूँ, लोगों अपने जुल्म से लोगों को बचा लो, तुम बच जाओगे, कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, समाज के अंदर से बेचैनी खत्म हो जाएगी, आपस की नाचाकी खत्म हो जाएगी, समाजी और दुनियावी फितने खत्म हो जाओगे। अल्लाह ताला अदल करने वाला है, अदल करने वालों को अल्लाह पसंद फरमाता है, अल्लाह इंसाफ करने वाला है, अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। लिहाजा जुल्म और ज्यादती सबसे बड़ा कोरोना वायरस है। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा कोरोना वायरस ज़ईफ और कमज़ोर बीवी और कमज़ोर और ज़ईफ चौपायों पे जुल्म। बीवी ये बीवी है, बीवी ये घर की रानी है, बीवी ये बच्चों की अम्मी जान है, बीवी ये वो बीवी है जिसने अपना दिल भी हमें दे दिया और सबको अपनी इज्जत और अपनी इस्मत भी कुर्बान कर दिया। ये बीवी जो हमारे पैर दबाती है, हमारे कपड़े धुलती है, हमारे बच्चों को 9 महीनों तक अपने पेट के अंदर रखती है, हमारे बच्चों के पाखाना पेशाब में सोती है, हमारे बच्चों को अपने जिस्म का खून दूध की शक्ल में पिलाती है। ये बीवी जिसके बारे में अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली, तुम में से सबसे अच्छा और बेहतर वो है जो अपने बीवी बाल बच्चों के लिए बेहतर हो और मैं अपनी बीवियों के लिए सबसे ज्यादा बेहतर। यकीनन औरत सिन्फ नाजुक है, फितरी तौर पर एक कमजोर पैदा की गई है, ये कम अक्ल है, लेकिन अगर ये आप हाकिम है, ये महकूम है, आप गालिब है, ये मगलूब है, लेकिन एक ताकतवर का कमजोर पर जुल्म करना ये और बहुत भयानक जुल्म है। इसी तरह जानवरों पर, चौपाई पर, आप अपनी गाय पर जुल्म करें, अपनी बकरी पर जुल्म करें, अपने बैल पर जुल्म करें, वगैरह वगैरह वगैरह, ये बहुत बड़ा जुल्म है। इसी तरह एक कोरोना वायरस, बड़ा कोरोना वायरस, बड़ा गुनाह, मैं सिर्फ नाम जिक्र करता हूं, वो है पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाना। पड़ोसी, चाहे वो घर का पड़ोसी हो, चाहे खेत का पड़ोसी हो, चाहे वो सफर का पड़ोसी हो, चाहे किसी मीटिंग का पड़ोसी हो, चाहे वो दस्तरखान का पड़ोसी हो, चाहे वो क्लास का पड़ोसी, पड़ोसी 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 पड़ोसी, चाहे वो मुसलमान हो, तहज्जुद गुजार हो, मुत्तक़ी परहेजगार हो, चाहे वो काफिर और गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, चाहे वो बदअमल ही क्यों ना हो, चाहे वो शिर्क करने वाला ही क्यों ना हो, चाहे वो जुल्म ज़ाती का बाजार गर्म करने वाला, उसका जो हक है। हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन हमें हमेशा पड़ोसियों के बारे में वसीयत करते रहे, यहाँ तक कि मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरे पड़ोसी को मेरे माल में शरई वारिस बना देंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम जारा, तुम में से जिस शख्स का ईमान अल्लाह पर और बदले वाले दिन पर है, वो अपने पड़ोसी के साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव करे। पड़ोसी को नुकसान पहुंचाना, पड़ोसी पर जुल्म करना, पड़ोसी को तकलीफ देना अपनी आदत से, अपनी हरकत से, अपनी बात से बड़ा कोरोना वायरस है। आप जानते हैं, एक घर होता है, फिर दूसरे घर होते हैं, फिर तीसरे, तो बच्चों से ये घर बनता है और कई घर मिलकर के समाज और मेजॉरिटी बनती है। पड़ोसी तो एक अलग मौजूद है। पड़ोसी को अजियत पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना, ये बहुत बड़ा ऐसा कोरोना वायरस है जिसका अंजाम दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। इसी तरीके से ये तो पड़ोसी की बात हुई जो आपका
करीब है घरेलू एतबार से और दीगर एतबार से, करीबी रिश्तेदार के पड़ोसी इनका और ही मकाम है। आम मुसलमानों को अजियत और तकलीफ पहुंचाना, आम मुसलमानों को, ये दुनिया के बादशाह लोग जो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, हर मामले में मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, उनके ऊपर तोहमतें कर रहे हैं, उनके अरसे हयात को तंग कर रहे हैं, उनको देश से निकालना चाहते हैं। सुन लो, जो आपका प्रतिपालक रब पालनहार है, वही प्रतिपालक और वही रब पालनहार मुसलमानों का भी है, ईसाइयों का भी है, क्रिश्चियनों का भी है, सारी मखलूकात का वही उसके यहाँ न्याय है। ना मुसलमानों को यह इजाजत है कि किसी गैर को बेजा अजियत और तकलीफ पहुंचाए, और ना किसी गैर को यह इजाजत है कि मुसलमानों को बेजा अजियत और तकलीफ पहुंचाए। मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना बिना शरई मसलहत के, बिना दीनी इजाजत के, बहुत बड़ा कोरोना वायरस, बहुत बड़ा कोरोना वायरस। मुसलमान को तकलीफ पहुंचाना, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को पहुंचाए, ये बहुत बड़ा और ये जब तक ख़त्म नहीं होगा, ऐसे ही हम मुख्तलिफ अंदाज के कोरोना वायरस से हम और आप परेशान हैं। इसी तरीके से मेरे भाइयों, अल्लाह के किसी भी बंदे को तकलीफ पहुंचाना, पड़ोसी हो, बीवी हो, भाई हो, वगैरह वगैरह, ये बहुत बड़ा कोरोना वायरस है मेरे भाइयों। एक और बड़ा कोरोना वायरस जिससे समाज बिगड़ जाता है, समाज के अंदर नफरतें पैदा हो जाती है, खानदान बिगड़ जाता है, रिश्ते नाते टूट जाते हैं, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, दोस्त दोस्त का दुश्मन हो जाता है, और वो है फख्र, वो है गुरूर, वो है घमंड, वो है तकब्बुर, वो है अकड़पन। और उसी में से, अकड़पन में से, गुरूर में से, तकब्बुर में से, घमंड में से, बहुत सारी निशानियों में से एक निशानी ये है जो बहुत बड़ा कोरोना। टखनों के नीचे मर्दों का पैंट पहनना, लुंगी पहनना, पायजामा पहनना। आज कितने नमाजी रोजेदार लोग, हम लोग इसको हल्का समझते हैं। टखनों के नीचे पैंट पहनना, लुंगी पहनना, पायजामा पहनना मर्दों के लिए ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा कोरोना वायरस है। क्योंकि हमारे आका ने फरमाया कि एक आदमी का पायजामा जितना टखने के नीचे रहेगा उतना वो जहन्नम के अंदर जलेगा, और ये तकब्बुर की निशानियों में से एक निशानी है। मेरे भाइयों साथियों, कोरोना वायरस में से एक बहुत बड़ा, आज तो जमाना बदल गया, नया है जमाना, नहीं रोस्ट। आज नौजवानों के हालात को देखो, नौजवान बच्चियों के हालात को देखो। कोरोना वायरस, मर्दों का सोना पहनना, रेशमी कपड़ा पहनना, ये जुर्म है। ये अमली कोरोना वायरस है, ये अमली कोरोना वायरस है, ये जहन्नम में ले जाने का सबब है। और उससे बड़ा कोरोना और हानिकारक वो कोरोना, उससे बढ़ के कौन सा कोरोना जो जहन्नम में ले जा करके। मर्दों के लिए सोना हराम है, सोना पहनना हराम है, चाहे वो अंगूठी हो, चाहे लाकिट हो, चाहे हार हो। आज तो सोना ही का तावीज, गंदे, कड़े, छल्ले, ये सब बड़े बड़े कोरोना वायरस है जिसका अंजाम दुनिया में हम देख रहे हैं और आखिरत में तो मिलेगा। रेशमी कपड़ा पहनना, रेशमी कपड़ा पहनना, ये भी कोरोना वायरस है। ये चीज़ें औरतों के लिए हलाल है, मर्दों के लिए नहीं। और इसी तरीके से कोरोना वायरस में से एक बहुत बड़ा कोरोना वायरस, किसी भी गुलाम का अपने मालिक से भाग जाना। और ये तो आज ये चीज़ नहीं है, यानी अहद मुआहदा करके भी भाग जाए, ये दूसरा मसला। कोरोना वायरस, बहुत बड़ा कोरोना वायरस, अगर इससे हमने तौबा न किया, हमारे मुसलमान कहने वालों ने तौबा न किया, तो ये दुनिया का कोरोना वायरस, तो इससे तो हम सताए ही जाएंगे, आजमाए ही जाएंगे। कब्र में और बहुत बड़ा अजाब होगा, वो है अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना, गैरुल्लाह के लिए ज़बह करना, गैरुल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए नजरो नियाज करना, गैरुल्लाह की दुहाई देना, गैरुल्लाह से रोना और चिल्लाना, और गैरुल्लाह को हाजत रवा समझना, गैरुल्लाह को मुश्किल कुशा समझना, गैरुल्लाह को दाता समझना, गैरुल्लाह को सब कुछ समझना। उठते हुए या अली अल मदद, बैठते हुए या गौर मदद, मुसीबत आए तो या ख्वाजा या फला। ऐ मेरे भाइयों, अल्लाह ताला अगर आपको नुकसान पहुंचाना चाहे तो क्या कोई है जो अल्लाह के इस फैसले से आपको बचा ले? अल्लाह अगर आपको फायदा पहुंचाना चाहे तो क्या कोई है जो आपके हिस्से में अल्लाह का फायदे के बारे में किया गया फैसला रद्द कर दे? गैरुल्लाह के लिए ज़बह करना,
गैरुल्लाह से मिन्नतें मानना, गैरुल्लाह से दुआएं करना, गैरुल्लाह को दुख और सुख और खुशी और गमी में पुकारना, गैरुल्लाह को हाजत रवा समझना, गैरुल्लाह को मुश्किल को समझना, गैरुल्लाह को दाता समझना, वगैरह वगैरह वगैरह। ये बहुत बड़ा कोरोना वायरस है। ये ऐसा कोरोना वायरस है जिसका नतीजा हम देख रहे हैं। और कब्र में क्या हो, ये सब शिर्क है, ये सब कुफ्र है, ये जहालत का काम है, ये जाहिलियत का काम है। ये वो काम नहीं जिसे आपके आका ने सिखाया हो, ये वो काम नहीं जो आपके साहबा ने सिखाया हो, ये वो काम नहीं जो आपके इमामान दीन ने सिखाया हो, ये वो काम नहीं जो आपके वलियों ने सिखाया हो, ये वो काम नहीं एक वली, एक सहाबी, एक ताबई, आपका नबी, खुलफाए राशिदीन गैरुल्लाह 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 से दुआई मांगेंगे, गैरुल्लाह को अल्लाह के बराबर समझेंगे, गैरुल्लाह को अल्लाह का भागीदार। आप जान लो ये शिर्क है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को नहीं माफ करेगा और इसके अलावा अल्लाह ताला जिसे चाहेगा माफ कर देगा। कोरोना वायरस में से एक बहुत बड़ा कोरोना वायरस जिसको बड़ा गुनाह है, किसी आदमी का, लड़के का बाप को छोड़कर किसी गैर की तरफ निस्बत करना। जैसे मेरा नाम अताउर रहमान सईदी है, मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में ऊंचा मकाम है, उनका नाम अब्दुल्ला सईदी है। अब मैं अताउर रहमान पुत्र अब्दुल्ला सईदी, अताउर रहमान सन ऑफ अब्दुल्ला सईदी, अताउर रहमान बिन अब्दुल्ला सईदी के बताए मैं कहूँ मैं अपना बाप किसी दूसरे को पासपोर्ट में लिखाऊं या किसी, यानी अपनी निस्बत किसी गैर बाप की, तो ये बहुत बड़ा कोरोना वायरस और बहुत बड़ा जुर्म है और इस तरीके से इस पर सख्त वईद है। कोरोना वायरस में ना हक झगड़े करना, हक पर झगड़े करना, वो भी बिना गाली गलौज के, बिना मार पीट के, बिना हेतरी की दतरी के, हक को हक साबित करने के लिए इंसानियत के अंदाज में, हमदर्दी के अंदाज में, प्यार और मोहब्बत के अंदाज में, ये तो ठीक है। लेकिन ना हक हक मेरा नहीं है उसको लेने के लिए झगड़े, बातिल तरीके से, गलत तरीके से, जो तरीके से ये झगड़े और लड़ाई करना, ये बहुत बड़ा कोरोना वायरस और बहुत बड़ा गुनाह है। इसी तरीके से हमारे घर में जरूरत से ज्यादा पानी है और पड़ोस प्यासा मर रहा है, आने जाने वाले प्यासे मर रहे हैं, अपनी जरूरत से ज्यादा पानी को स्टॉक कर लेना, पड़ोसी को पानी ना देना और मुसाफिरों को पानी ना देना, ये बहुत बड़ा कोरोना वायरस है। एक और बहुत बड़ा कोरोना वायरस जो बड़ा गुनाह है, नापतोल में कमी कर लेना। नापतोल में अल्लाह ताला ने फरमाया है वज़्नु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, सीधे तराजू, सीधे दाढ़ी से। ये बंबई में जो लप्पू मारना या दाढ़ी मारना है, ये आप तो जानते हैं ना, आप तो में कमी लेना हो तो 10 का 20 ले ले, देना हो तो 10 का 8 दे। ये बनियों के अंदर भी आज बनियों के सब लोग बनिया हो गए भाई, सबके निगाह में दुनिया ही दुनिया है। अल्लाह को भूल गए, अल्लाह की निगरानी को भूल गए, अल्लाह की कुदरत को भूल गए। नापतोल में कमी करना, अरे भाई नापतोल में कमी करके सेठ बन जाओगे, चंद दिनों के अंदर फला गांव के फला सेठ, फला मुल्क के फला सेठ बन जाओगे, लेकिन आखिरत में सबसे ज्यादा गरीब होगे। नापतोल में कमी, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, अल्लाह ताला ने बाकायदा जहन्नम की धमकी दी है जो नापतोल में कमियां करते हैं। और इसी तरीके से मेरे भाइयों साथियों, अल्लाह की तदबीर से बेखौफ हो जाना, अल्लाह की तदबीर से निडर हो जाना, बेखौफ हो जाना, ये तो एक ऐसा जुर्म है कि जब अल्लाह की तदबीर से हम बेखौफ हो जाएंगे, निडर हो जाएंगे, तो फिर हम अल्लाह को भूल जाएंगे, फिर हर तरह का गुनाह और हर तरह की मासियत करें। ये बहुत बड़ा कोरोना वायरस है। इसी तरीके से कहते हैं मेरे भाइयों, मस्जिद के अंदर जमात खड़ी है, मस्जिद के अंदर जमात खड़ी है और उसे छोड़कर अलग जमात बनाना, ये बहुत बड़ा गुनाह और ये बहुत बड़ा कोरोना वायरस है मेरे भाइयों। बिना उज़्र शरई के नमाज जुमा को छोड़ देना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और वसीयत में किसी को तकलीफ पहुंचाना, ये बहुत बड़ा कोरोना वायरस और बहुत बड़ा गुनाह है। आज बहुत सारे जाहिल बाप ये वसीयत कर जाते हैं या उनके हवासी मवासी उन्हें वसीयत कर, बच्चों के दरमियान नाइंसाफी कर जाते हैं जानबूझकर, या उनके हवारी मवारी कर ले जाते हैं। एक बच्चे को वसीयत कर दिया, दूसरे बच्चे को महरूम कर दिया।
वसीयत में किसी को तकलीफ पहुंचाना, ये बहुत बड़ा जुर्म और बहुत बड़ा कोरोना वायरस है। इसी तरीके से किसी के खिलाफ धोखाधड़ी करना, गलत प्लानिंग करना और मुसलमानों की जासूसी करना, मुसलमानों की जासूसी करना, उन्हें बुरे अलकाब से नवाजना और उनके खिलाफ तदबीरें करना, उनके साथ धोखाधड़ी करना, उनको छोड़कर गैरों से दिली हमदर्दी और मोहब्बत करना, ये बहुत बड़ा कोरोना वायरस है। सहाबे कराम को बुरा भला कहना, उन पर लान तान कहना और अंबिया और औलिया को और सलहाए उम्मत को या इल्म दीन रखने वालों को बेजा बुरा भला कहना, ये बहुत बड़ा कोरोना वायरस है। तो मेरे भाइयों साथियों, ये चंद बड़े बड़े गुनाह मैंने आपको बतलाने की कोशिश की जो दुनियावी कोरोना वायरस से कहीं ज्यादा बड़ा कोरोना वायरस है। और ये सारी चीजें जब मैंने फहरिस्त के तौर पर बयान किया, एक किताब अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, कबीरा गुनाह। कबीरा गुनाह, बड़े बड़े गुनाह अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे जिक्र किया है और बड़े बड़े उलमाए कराम ने इसका तर्जमा उर्दू जबान में किया है। मेरे भाइयों, लिहाजा इस किताब को पढ़ो और समझो और दुनिया के अंदर अल्लाह ताला की जानिब से उतारे गए कोरोना वायरस से बचने की हर तदबीर करो जिस तदबीर का करना शरीयत ने इजाजत दी है, और उन कोरोना वायरस वाले रोग बीमारी गुनाहों से बचाओ जिसका बुरा नतीजा दुनिया में भी मिलेगा, आखिरत में भी मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको हर छोटे बड़े गुनाह से महफूज रख, हमें अपने सारे खुल्लम खुल्ला पे और चुपके चुपके किए हुए बड़े गुनाहों से तौबा करने वाला बना, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होने वाला बना, और हम सब की तौबा कबूल फरमा। अल्लाह सारे मुसलमानों को बख्श दे, सारे मुसलमानों को बड़े बड़े गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमा, उनके तौबों को कबूल फरमा ले और हर छोटे बड़े गुनाह से महफूज रख, तो ही महफूज रखने वाला है। आमीन। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा।